गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल क्लास में आपका वेलकम है। आज अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्कनेक्शन अप्रोच, अबाउट एफजीआई, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, एंड थर्ड यू हैव डिस्कस्ड रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ये तीनों टर्म्स आपको समझा दी थी। डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, एफजीआई क्या है एंड रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या है। टुडे we continue with a new topic, this one, target molecule. What do you mean by target molecule? The molecule which synthesis is being planned is called target molecule, and usually written as TM short form है target molecule के। इसका मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सिंथेसिस हम लोग प्लान करते हैं उसको डिस्कनेक्ट करने का जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है उस मॉलिक्यूल की, उसके जो बॉन्ड ब्रेकिंग की अप्रोच है उसे हम लोग बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स विच सिंथेसिस इज बीइंग प्लान्ड, कि जिसके सिंथेसिस का प्लान किया जाता है, दैट्स कॉल्ड target molecule. For example, this one target molecule, because we have to plan to first of all break down the bonds of this molecule and then plan to synthesize this molecule from its starting material, starting easily available material. एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि एक मॉलिक्यूल जो भी है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसको हम लोग कहाँ तक डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब उसके बॉन्ड कहाँ तक तोड़ते जाएंगे या ब्रेक करते जाएंगे। तो वो हमें ध्यान रखना है कि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, एक जो इजीली अवेलेबल जो कंपाउंड है या जो भी मॉलिक्यूल्स है वहाँ तक हमें उस टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिस वन मॉलिक्यूल, there is two possibility or two types of possibility of disconnection, path A and path B, because if we break this bond, this one path A, and if we break this bond in first step, then path B. First of all, path A, if we break that, this is an example of Friedel-Crafts alkylation, then Friedel-Crafts alkylation, then this one and this one will be synthetic equivalent. सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। इफ़ इन सेकंड स्टेप वी ब्रेक दिस बॉन्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो द synthetic equivalent will be benzene and acetyl chloride. This one, the synthetic equivalents of this target molecule, synthetic equivalent of this target molecule, synthetic equivalent क्या है अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। पाथ बी, इफ़ we break this bond acetyl group in first step, this one is an example of Friedel-Crafts alkylation, so this will be synthetic equivalent. And in second step we break this isopropyl group, this one is an example of Friedel-Crafts alkylation, so these are the synthetic equivalent of this target molecule. आगे चलते हैं। अब जो डिस्कनेक्शन किया हमने उसी मॉलिक्यूल का जो हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल बनाया है उससे हम लोग इसके सिंथेसिस को प्लान करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाथ ए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन विल रिएक्ट एसिटिल क्लोराइड एंड Friedel-Crafts alkylation, so this product will be formed in first step. In second step this compound will react isopropyl group in presence of aluminum chloride, this one is the Friedel-Crafts alkylation.
In this case, the alkylation will take place at meta position. Meta position, because this acetyl group is electron withdrawing group, and because of this electron withdrawing nature, it is meta directing group. So by the alkylation of this group, means acetophenone, by the alkylation of acetophenone, the alkylation will take place at meta position, and this is not our target molecule, because in target molecule acetyl and isopropyl groups are ortho position to each other. So this disconnection is not a good, because there is no formation of desired product, because in second step benzene will react with isopropyl group, means in first step Friedel-Crafts alkylation will take place, and this cumene will formed, and in second step acetyl cumene will react acetyl chloride in presence of AlCl3, and Friedel-Crafts alkylation take place. In this reaction, this product will be formed, means acetylation will take place at para position with respect to this isopropyl group. Okay, so this is our desired product. So ये क्लियर हो गया है कि हमें पहले कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है. हमें बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करना है या इस सीक्वेंस में ब्रेक करना है. टारगेट मॉलिक्यूल्स के जो भी बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे उनको इस सीक्वेंस में ब्रेक करेंगे कि जब उसी सीक्वेंस में जब स्टार्टिंग मटेरियल से उस मॉलिक्यूल का टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस किया जाए तो हमें डिजायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल मिले. ठीक है, इसमें नीचे लिख भी रखा है मैंने. In path A, acyl group is meta directing, so meta product will be formed. So here A is a incorrect method. जो फर्स्ट मेथड है वो सही नहीं है क्योंकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है. बट पाथ बी इज करेक्ट मेथड इन विच पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. जो पाथ बी है वो हमारा एक करेक्ट डिस्कनेक्शन अप्रोच है एज कम्पेयर टू पाथ ए. पाथ ए में तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल. टारगेट मॉलिक्यूल क्या है कि वो मॉलिक्यूल जिसका सिंथेसिस हमें प्लान करता है, जिसका डिस्कनेक्शन हमें करना है, दैट कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल. शॉर्ट में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, टीएम. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है सिंथेटिक इक्विवेलेंट. अभी मैंने बताया था वहाँ पे कि मैं बार बार यूज कर रहा था सिंथेटिक इक्विवेलेंट. व्हाट डू यू मीन बाय synthetic equivalent? It is a reagent carrying out the function of a synthon. अब synthon क्या है? synthon next topic नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे synthon, which cannot itself be used often because it is too unstable. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल या एसीटोन की बात करते हैं, एसीटोन में अगर हम लोग डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला डिस्कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. अब ये वाला, ये सिंथोन, ये भी सिंथोन. अगर हम लोग अब इसकी बात करते हैं सिंथोन के बाद में, तो ये जो सिंथोन है वो हमें कहाँ से मिल सकता है? दिस एसिटिल क्लोराइड से, बिकॉज Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. जब ये जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा तो ये वाला सिंथोन बन जाएगा. CH3 पे नेगेटिव, ये अम्पोलिंग रिएजेंट होता है, तो यहाँ पे ये किससे बन सकता है? ग्रिग्नार रिएजेंट से. तो दीज आर द सिंथेटिक इक्विवेलेंट एंड दीज आर द सिंथॉन्स. अब हम लोग एक बार इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं सिंथोन, फिर और भी क्लियर हो जाएगा. सिंथोन, इट इज़ एन आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट यूजुअली ए कैटायन और एनायन रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिस्कनेक्शन. हम लोग जब भी किसी बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करेंगे तो जो दो एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उस बॉन्ड को जब हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो एक जगह पॉजिटिव बेसिकली और एक जगह नेगेटिव,
तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने के बाद जो स्पीसीज बनती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं सिंथोन। इट मे बी और नॉट मे बी एन इंटरमीडिएट इन द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Synthon tell us to work out which reagent is used during the chemical reaction. Reagent means synthetic equivalent. Synthetic equivalent को ही reagent बोलते हैं। Synthon tell us work out which reagent is used during the chemical reaction. Synthons जब बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो synthons बनते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं हमें कि हमें इस रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट और कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज करना है। तो बेसिकली जो मेन कंसेप्ट था हमारा वो क्या था, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। डिस्कनेक्शन अप्रोच FGI डिस्कस कर लिया हमने। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, आज हमने डिस्कस किया है टारगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है सिंथेटिक इक्विवेलेंट S.E और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है सिंथोन। ये 6 टॉपिक्स या 6 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अब वो ये है कि जो जितने भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट है मींस जो स्टार्टिंग एवेलेबल मटेरियल है उन सब का कोई ना कोई एक सिंथोन होगा। तो जो मेजर और जो इम्पोर्टेंट सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं जो हमें इस पूरी बुक में यूज करने हैं, पूरे सिलेबस में यूज करने हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आपको याद रखना होगा हमेशा कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने पे कौन सा सिंथोन बना है और जो सिंथोन बना है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। मींस जनरली कोई भी बॉन्ड था XY के बीच का हमने ब्रेक किया तो यहाँ से X पॉजिटिव Y नेगेटिव, उल्टा भी हो सकता है Y नेगेटिव X पॉजिटिव, ये सिंथोन होगा। और इसका ये सिंथोन कहाँ से मिल सकते हैं हमें, वो हम लोग उसको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करनी चाहिए, सिंथोन बने हैं और ये सिंथोन्स कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ मेजर जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिंथोन R नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपका सिंथोन क्या है R नेगेटिव है, तो ये R नेगेटिव मीन्स इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट या रिएजेंट मीन्स ये R नेगेटिव हमें कहाँ से मिलेगा। वो हो सकते हैं RMGX, RLI, R2CLI। R2CLI को बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, R2ZN फ्रैक्लैंड रिएजेंट, R2CD। मीन्स जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब में R जो ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो R नेगेटिव अगर हमें एज ए सिंथोन चाहिए तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑलवेज ग्रिग्नार रिएजेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले सकते हैं। सेकंड है आपका, अगर आपका सिंथोन R प्लस है तो ये R प्लस हमें कहाँ से मिलेगा, देखो RL L कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। जब लिविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा तो R पे पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो ये RL क्या हो सकता है, RBr हो सकता है, RCl हो सकता है, RI हो सकता है, ROTS टोसाइलेट हो सकता है, ROBS ब्रोसाइलेट हो सकता है, ROTF ट्रिफ्लेट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन H प्लस से करवाते हैं, इसके अलावा इसकी बात कर रहा हूँ, अल्कोहल की रिएक्शन H प्लस से करवाते हैं तो ये इसका प्रोटोनेशन करता है और यहाँ से फिर H2 निकल जाता है तो यहाँ से भी R प्लस मिलता है। मीन्स ये रिएक्शन भी इस सिंथोन के लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो सकती है। तो इसके अलावा अगर एल्कीन की रिएक्शन हम लोग H प्लस से करवाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा R प्लस। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी R प्लस का सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो सकती है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, बहुत जगह पढ़ेंगे हम लोग
कि एसिड की H+ से रिएक्शन करवाएं तो जो हमें सिंथोन मिलेगा वो इससे बन सकता है, इन दोनों की रिएक्शन से भी R+ वाला सिंथोन बन सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये वाला सिंथोन है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा एसिटाल्डिहाइड। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना हमेशा। याद नहीं रखोगे तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी करेंगे इस चैप्टर में तो हमें ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाला सिंथेटिक सिंथोन है, एक ही है, मैंने लिखने का तरीका अलग है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा एसीटोन। अगर ये वाला सिंथोन है आपके पास तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा ये वाला इपोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला है, कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OBS हो सकता है, OTS अभी जो मैंने लास्ट में बताए थे वही सारे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। तो ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर आपका सिंथोन ये वाला है तो ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। अगर आपका सिंथोन ये है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट वही यहाँ पे L जोड़ देंगे। L क्या हो सकता है, Cl, Br, OBS, OTS एक्सेट्रा। अगर आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला है कोई सा भी, तो इसका आपका सिंथोन ये है तो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो जाएगा मैलोनिक एस्टर। अगर आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला इस टाइप का है तो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बन जाएगा 1,3,1,5 डाइथाइन कंपाउंड, 1,4 डाइथाइन कंपाउंड, 1,5 डाइऑक्सिजन कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड होंगे वो इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे। अगर आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला है तो इसका सिंथोन आपका ये है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसिटिलीन हो जाएगा। इस टाइप के कोई भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर आपका सिंथोन इस टाइप का है तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो इनेमीन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन से सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्शन करने से पहले ये माइंड में होना चाहिए कि कौन सा सिंथोन बना है और उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कनेक्शन के पढ़ेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के 3-4 एग्जाम्पल पहले हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि कैसे सिंथोन बना है और कैसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर कुछ अन्य टर्म्स पे, जैसे लेटेंट ऑफ पोलैरिटी पढ़ेंगे, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन की बात करेंगे। फिर जो टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन है उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।